Hello student. Okay, डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी हैड wrote like this कि v is equal to dx by dt. I already told that कि d by dt it's represent the derivatives or differentiation. Okay, it means you can write the here that the differentiation of position with respect to time. ठीक है, ये ऐसा रिप्रेजेंट करता है. उसी तरह इफ आई राइट फॉर द एक्सेलरेशन a is equal to dv by dt, that you can write the differentiation of velocity with respect to the time. लेकिन what is हमें पता होना चाहिए what is the derivatives or differentiation. It is a mathematical concept, but the thing is that one of few of the formula we need in our physics. So we are going to discuss that formula which is important for physics point of view. Okay, we are not dealing whole concept, but we are dealing a few formula which is related to the our physics. For example, here a derivation with respect to time. So here the first thing is that if something is given to you like x raised to n, then it means you can write like this d by dx. It means with respect to the x means the here we are taking with respect to the x means the position x raised to n. So you need to write like this. ये n क्या आ जाएगा, n come forward. It means n is over here, x raised to n minus 1. So here the formula become what? You can write the first formula x raised to n and x raised to n minus 1. This is your first formula. This is your first formula. Now take one example to better understand. If something is given like this, x raised to 7 is given to you, then you can write like this d by dx x raised to 7. ये 7 क्या आ जाएगा? It come forward 7 x raised to 7 minus 1 and the answer become x raised to 6. This is the first formula. ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है. नाउ सेकेंड फॉर्मूला की तरफ चलते हैं. सेकेंड फॉर्मूला इज represent for the constant. For example, k is given to you. Now you can write like this d by dx and k. Here the k is equal to constant. तो जब भी k constant रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0. It means you can write like this if dk by dx is equal to 0. It means when the k is constant, its derivative is 0. Now we just took one example for this example. If we have a numbers, for example, if someone say that the derivation of the 7, then you can write the d7 by dx which is 0. ठीक है, तो जब भी कांस्टेंट आएगा we have to write the derivative is 0. Now for the third formula which is important for us is that if we have like this, if we have d by dx and we are differentiation of the ky, ठीक है, is the k is a number and the y is a derivative. Understand, mark my word, y is a derivative, but the y and lower part means the denominator is not the same. See this y, here is the y and here is the x. It means both are not the same. If the k is equal to only k is there, it's on a constant, it becomes 0. But here k is multiplied with the something. So for example, you can write like this: k took out and dy by dx. You can write like this. It means your formula become what? Here d by dx ky is equal to k dy by dx. This is your formula. This is the number third. Now took an example for this example. If we have 7y, okay, now we have to derive this dx 7y, where the 7 is a constant number.
only 7 is there, it is 0, but is 7 multiply with the some derivatives, so 7 come out and you can write the dy by dx, because y and x are both are different quantities or different derivatives. Now we just took number 4. For the number 4, okay, what is number 4? If we take only x, now derive this dx by our differentiation with respect to the x, both are same. If it is same, it become 1. It means numerator and denominator are same, dx by dx, then answer become 1. okay, here कंफ्यूज मत होना, जब भी हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करेंगे वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस क्वांटिटी और दैट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. यहाँ dt है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए फॉर्मूला के लिए यहाँ पे सब मैंने x लगाया हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो जाना. यहाँ पर भी x है, देखो मैंने डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किया है सिर्फ समझने के लिए. ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पूरा साथ में आए तो कैसे करते हैं. ठीक है, यहाँ साइड में ले लेता हूँ, इसलिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर दी अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, चलो एग्जाम्पल एक कंसिडर करता हूँ. सपोज एग्जाम्पल इज लाइक दैट पोजिशन x इज इक्वल टू इज पोजिशन x इज इक्वल टू इज t⁻7 प्लस 3t प्लस 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है और बोल दिया है कि डिफाइन द वेलोसिटी. डिफाइन द वेलोसिटी. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी मीन्स क्या हो जाएगा. यू कैन राइट लाइक दिस, द वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt. x की वैल्यू हमें यहाँ पे दिए हुए देखो, तो यू कैन राइट लाइक दिस d बाई dt. x का वैल्यू क्या है, t⁻7 3t प्लस 1. ठीक है, t⁻7 मीन्स वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला x⁻n वाला. ठीक है, यहाँ x⁻n था, यहाँ n की बदले क्या है 7 दिया हुआ है और x के बदले t है. और डेरिवेशन में भी देखना, यहाँ x, ये x था और ये भी x था, यहाँ t है और ये ऊपर भी t है, कोई हमें इश्यू यहाँ आएगा नहीं. तो चलो हम यहाँ से करते हुए, तो पहले ये हमारा 7 के यहाँ आ जाएगा, 7 आगे आ जाएगा. ठीक है, पहले एक काम करो, सबको लिख लेते हैं, d बाई डी टी t⁻7 प्लस d बाई डी टी 3t प्लस d बाई डी टी 1. ठीक है, चलो ये 7 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा. यू कैन राइट द 7 इन फॉरवर्ड एंड देन 7 माइनस 1. ओके, देन 3 मीन्स वी आर गोइंग फॉलो दिस फॉर्मूला. थर्ड वन 3 इज कॉमन एंड dt बाई dt हो जाएगा. अब देखो 3 कॉमन है, dt बाई dt, यहाँ पे फोर्थ फॉर्मूला भी यूज होगा. dx बाई dx 1 था, तो यहाँ dt बाई dt भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा. और ये तो कांस्टेंट वाला है, तो कांस्टेंट वाला सेकंड कांस्टेंट वाला फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा सेकंड, इट विल बी अ 0. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए 0. चलो आंसर देखते हैं, 7 t⁻6 प्लस 3. दिस इज योर वेलोसिटी फॉर्मूला. ओके, इससे आगे भी हम लोग कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द अवर एग्जाम्पल होगा. जब हम इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तब हम उसे देखेंगे कि आगे कैसे करना है. तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक फोर्थ फॉर्मूला इज़ देयर, लेकिन उससे ज़्यादा भी कहीं फॉर्मूला है. हम आज मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला आज हम डिस्कस करेंगे. चलो उसके बाद का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. नाउ दिस इज़ द फोर्थ फॉर्मूला इज कंप्लीटेड. नाउ गो फॉर द फिफ्थ वन. इफ डिफ्रेंशिएशन फिफ्थ वन. चलो फिफ्थ वन में फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं. सपोज इफ दे गिवन अस दैट दी y इज इक्वल टू साइन x, इट मीन्स साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है. तो कैसे करेंगे, पहले देखिए, ये dy बाई डी एक्स की टर्म हो जाएगी. यहाँ x है तो हम x से ही करेंगे, d बाई डी एक्स साइन x. तो जब भी साइन x का होगा तो याद रखना साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है. क्या होता है, cos x होता है. तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जब भी डिफ्रेंशिएशन की बात है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस साइन x, इट बिकम cos x. दिस इज आर फिफ्थ फॉर्मूला. ठीक है, दिस इज आर फिफ्थ फॉर्मूला. नाउ उसके बाद सपोज 6(1) देखते हैं. सपोज हमें y
साइन की जगह cos x दिया होता है तो क्या करेंगे, तो उसे भी हम इसी तरह लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इसे टर्म में लिखेंगे d बाई डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का याद रखना, कॉस एक्स का माइनस आ जाएगा और साइन एक्स होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, लेकिन जब भी कॉस की बात आए तो हमें क्या लिखना है, माइनस लिखना है। द डेट यू कैन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस दैट डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस sin x. You can write the minus sin x. This is the 6-1 formula. ठीक है, ये हमें ज़रूर पड़ेगी जब भी जेई नीट की बात आएगी, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर दैट। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, फ्यू ऑफ द फार्मूला दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस वही हम डिस्कस करेंगे। चल, लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज 7th. दिस इज 7. नाउ इफ वी हैव something like that, y is equal to ln x log x, और ln x means the logarithm की बात करेंगे तो you can write like this dy by dx, you need to write this form ln x। जब भी ln x की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला याद रखना है, इसका हो जाएगा ln x का 1/x। तो इसका आंसर हम इसका फॉर्मूला हमें याद रखने के लिए कैसे लिखेंगे, d by dx ln x इज इक्वल टू, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/x। जितने भी ये बॉक्स बना रहा हूँ आपको अपनी नोट में कॉपी करना है, ठीक है, और उसे लर्न भी करना है, सिर्फ कॉपी करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। उसी तरह 8 नंबर का 8 नंबर का देखते हैं, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। डायरेक्ट ही लिख देता हूँ उसका, तो डी बाई डी एक्स और ई रेस टू एक्स, एक्सपोनेंशियल का कुछ भी हो ये इसका ई रेस टू एक्स ही हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। ओके, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए एक और कंडीशन हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। सपोज द कांस्टेंट टर्म इज मल्टीप्लाई विद द एक्स, फॉर एग्जांपल हियर डी बाई डी एक्स, और बोल दिया है ई रेस टू 7x, तो उसका क्या हो जाएगा, ई रेस टू 7x ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, 7 आ गया। तो जब भी एक्स्ट्रा टर्म की बात आए वी हैव टू मल्टीप्लाई इन डिफरेंशिएशन, तो ये मैं 7 को क्या करूँगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस 7 विद द ई रेस टू एक्स, ये 7 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो दिस इज दी डेरिवेटिव्स ऑफ द ई रेस टू एक्स। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें देखना है, वो है मल्टीप्लिकेशन का, इम्पॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन का। उसका प्रैक्टिस हम जब भी एग्जाम्पल आएंगे तब करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ लिखते हैं और समझने की ट्राई करते हैं। किसका है, मल्टीप्लिकेशन। सपोज मुझे कुछ दिया हो इस तरह, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, उसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और इसे हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स के बाद यू कैन राइट लाइक दिस u इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, पहला टर्म ये देखिए, पहला टर्म उसे एज इट इज लिख दीजिए। नाउ डू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड वन, मीन्स द डी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ हो गया, पहला टर्म एज इट इज लिख दिया, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद प्लस साइन, उसके बाद सेकेंड टर्म एज इट इज रखिए और पहला टर्म का डेरिवेटिव कर दीजिए। क्या है, पहला एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस ले लीजिए, बाद में सेकेंड लिखिए, उसके बाद पहला का कीजिए। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो उसे हम अपने हिसाब से लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू कैन राइट लाइक दिस डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज, मीन्स द यू, derivative of the v dv by dx, plus second term as it is, means the v is the second term, and the du by dx. This is our 9th formula and this is our 8th one। ठीक है, ओके, मल्टीप्लिकेशन का आ गया तो डिवीजन का थोड़ी हम लोग बाकी रखेंगे, वो भी तो करना है ना। ठीक है, तो ये लास्ट फॉर्मूला है इस लेक्चर का, उसके ज़्यादा आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, जब भी एग्जाम्पल में ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग उसे देखते जाएंगे। सपोज वी हैव डेरिवेटिव मीन्स y इज इक्वल टू u बाई वी। ठीक है, u बाई वी, इट मीन्स यू कैन राइट
in our term dy by dx which is d by dx and u into v. चलो यहाँ पे क्या याद रखना है, पहले जो लोअर पार्ट है इट मीन्स दी जो डिवीजन में है उसे पहले एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ ये जो डिवीजन पार्ट है उसे एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद यू हैव टू टेक u, ओके, du बाय dx। उसके बाद आ जाएगा माइनस साइन। उसके बाद जो अपर टर्म है उसे इस तरह से लिख दीजिए और लोअर टर्म का डिफरेंशिएट कर दीजिए dv बाय dx, ठीक है, और डिवाइड बाय डिवीजन टर्म, ठीक है। यही सिंपल मेथड है। पहले क्या करना है, अपर टर्म एज इट लोअर टर्म एज इट इज, अपर टर्म का डिफरेंशिएशन, उसके बाद माइनस लगा दीजिए, अपर टर्म एज इट इज, लोअर टर्म का डिफरेंशिएशन और लोअर टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिखे तो कैसे लिखना है हमें, d बाई डी एक्स यू बाई वी इज इक्वल टू v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई dx डिवाइड बाई v स्क्वायर। दिस इज द 10th फॉर्मूला फॉर द डिफरेंशिएशन। यहाँ डिफरेंशिएशन की क्यों ज़रूरत पड़ी है पहले वापस बोल देता हूँ, बिकॉज when we talk about the instantaneous velocity, it means what? Instantaneous velocity means the differentiation of the position with respect to the time. means the differentiation करना है तो differentiation कैसे करेंगे उसके कुछ फॉर्मूला हम यहाँ डिस्कस करें। उसी तरह when we talk about the instantaneous acceleration, then the differentiation of the velocity with respect to the time, तो वहाँ सब विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम ही करना है, वहाँ विथ रिस्पेक्ट टू द पोजिशन नहीं करेंगे। ये सिर्फ फॉर्मूला समझने के लिए वी आर जस्ट टेक डी एक्स बाई डी एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू द पोजिशन, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी यहाँ कुछ चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ ये रूल्स भी याद रखना, सपोज समवन इज गिवन टू लाइक दिस कॉस के एक्स, देखिए के कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉस का क्या हो जाएगा हमें पता है, जब भी कॉस की बात करें यहाँ पे देखिए विच इज माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा माइनस साइन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस साइन के एक्स, ये मेरा टर्म, ओके। ये मेरा एंगल समझ लो, जो समझना है एंगल समझ सकते हो, और वी कैन से दैट विच इज थीटा फॉर अस, तो यहाँ के एक्स लिख दिया। लेकिन क्या है एक्स्ट्रा टर्म मेरे पास के है, तो ये के को क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट के, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के साइन के एक्स। जो मैंने यहाँ पे दिखाया था उसी तरह हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो इसे भी आप एक फॉर्मूला के रूप में आप इसे ले सकते हैं, ओके। उसी तरह आप कॉस एक्स को साइन एक्स को भी ले सकते हैं। जब भी याद रखना, जब भी एक्स्ट्रा टर्म आए यहाँ डेरिवेशन में, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द क्वांटिटी, ये सिंपल टर्म है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।